کہ انسان بے بس ہے، انسان چاہتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ ہے۔ جیسے باغ والے چاہ رہے تھے کہ ہم صبح صبح خود ہی پھل توڑ لیں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ باغ ہی جل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو ہی جلا دیا، راکھ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَمَا تَشَاءُونَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری مرضی، تمہاری مرضی نہیں چلتی، تم چاہتے ہو ہم ساری زندگی بیماری نہ ہو، بیمار ہو جاتے ہو، تمہاری مرضی کہاں گئی؟ تم چاہتے ہو ہمیں بخار نہ ہے، نزلہ زکام نہ ہو، موسم بدلتا ہے ہو جاتا ہے، تمہاری مرضی تو نہ چلی۔ تم چاہتے ہو ہم دنیا کے امیر ترین ہو جائیں لیکن نہیں بن پاتے، تمہاری مرضی کہاں گئی؟ تم چاہتے ہو ہمیں موت ہی نہ آئے، ہمیں لمبی زندگی ملے لیکن موت آتی ہے، کہاں گئی تمہاری مرضی؟ تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ انسان چاہتا ہے ہمیشہ صحت مند رہے، کبھی بیمار نہ ہو، لیکن بیمار ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، میں نے اللہ کو پہچانا کیسے کہ میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے پہچانا کہ اگر میرے چاہنے سے کچھ ہوتا تو جیسے میں چاہتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں ویسے ہی ہوتا، لیکن معلوم ہوا کہ میرے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق کبھی ہمارے ارادوں کو پورا کر دیتی ہے، کبھی پورا نہیں کرتی، وہ ذات اللہ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، کیونکہ ملحدین اس بات سے انکار کرتے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، انسان چاہتا ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو لیکن اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے میں نے جانا کہ انسان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جس کا حکم انسانوں پر نافذ ہے، جس کا حکم انسانوں پر نافذ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فَلَا يَسْتَثْنُونَ، انشاءاللہ نہیں کہا، جب ہم کوئی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم اگر سخاوت کرتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو بھی سخاوت سکھائیں، اللہ کی راہ میں دینا کیا، دینے کا ذہن بتائیں، اللہ کی راہ میں دینے کی تربیت دیں، اولاد کو ذہن سازی کریں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری تو جیسی تیسی کٹ گئی، پلاٹ رکھے، جائیداد رکھی، یہ چیز کیا، یہ ہماری اولاد کے لیے ہے، ان کے کام آئے گا، لیکن اولاد کو اللہ کی راہ میں دینے کا بھی ذہن دیں، ان کو تربیت دیں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی سخاوت کا سبق دیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ صبح کو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ پاک سخی کو زیادہ بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ کنجوس کو تباہ و برباد فرما۔ حدیث میں یہ روزانہ ایسے ہوتا ہے، اور روزانہ دو فرشتے آتے ہیں، اور ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے سخی کے لیے، اور ایک فرشتہ کنجوس بخیل کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں کہ ہم کس فرشتے کی دعا لینا چاہتے ہیں۔ وہ فرشتہ جو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ سخی کو اور زیادہ عطا کر، یا وہ فرشتہ جو تباہی اور بربادی کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کنجوس اور بخیل کو تباہ و برباد فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں۔ قیس انصاری صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ، اتنا زیادہ خرچ کرتے کہ ان کے بھائیوں کو ان سے شکایت ہونے لگی، بھئی تم اتنا زیادہ خرچ کرتے ہو، کچھ اپنے لیے بھی بچایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے بھائیوں نے حضرت قیس انصاری کی شکایت کی، یا رسول اللہ یہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا، سارا خرچ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس انصاری کو بلایا،
वो आए, मामला पूछा। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं कारोबार करता हूँ, कारोबार में जितना मेरा अपना माल होता है मैं वो निकाल लेता हूँ, रख लेता हूँ, बाकी सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, खुश हुए। फिर उनके सीने पर आपने हाथ रखा और फरमाया, अनफिक युनफिकुल्लाहु अलैका। 3 बार फरमाया, अनफिक युनफिकुल्लाहु अलैका, खर्च कर, अल्लाह तुझे और ज्यादा अता करेगा। खर्च कर, अल्लाह तुझे और ज्यादा अता करेगा। खर्च कर, अल्लाह तुझे ज्यादा अता करेगा। हजरत कैस अंसारी फरमाते हैं, फिर ऐसे ही हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी। उस दुआ की बरकत ये ज़ाहिर हुई कि मैं अपने खानदान में सबसे ज्यादा मालदार बन गया। यह है अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब, फजीलत, फायदा। दुनिया में भी बंदे को फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है। एक बार शैतान से आपकी मुलाकात हुई। आपने उससे पूछा, ए मरदूद, ये बता, तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा मोहब्बत तुझे किससे है? तेरा पसंदीदा बंदा कौन है? तुझे सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है और किससे नफरत है? शैतान ने कहा कि मोमिन हो और बखील हो, मुझे वो पसंद है। कौन? मोमिन, बखील, उससे मुझे मोहब्बत है। और फासिक हो, सखी हो, मुझे उससे नफरत है। पूछा कि क्यों? कहा कि मोमिन जो है वो बखील है, उसको अल्लाह पे यकीन ही नहीं है कि अल्लाह उसको देगा, मुझे इसलिए पसंद है। और फासिक गुनाहगार बनता है लेकिन अल्लाह की राह में देता है, मुझे खौफ रहता है कि अल्लाह इसकी सखावत को कबूल न कर ले और इसके गुनाहों को बख्श न दे। जाते हुए शैतान ने कहा कि आप यहया अलैहिस्सलाम ना होते तो मैं ये बात ना बताता। इससे हमें मालूम हुआ, जो कंजूस बंदा होता है शैतान का वो दोस्त होता है, शैतान का पसंदीदा बंदा है। बखील बंदा शैतान का दोस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सखिय्यु करीबुम मिनल्लाहि, सखावत करने वाला अल्लाह के करीब है। वह करीबुम मिनल जन्नति, और जन्नत के करीब है। करीबुम मिनन नासी, लोगों के करीब है। वह बाईदुम मिनन नारी, और जहन्नम से दूर है। कौन? सखावत करने वाला। फिर आगे इरशाद फरमाया, बखील अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से भी दूर है, और फिर किसके करीब है? जहन्नम के करीब है। कौन? बुखल करने वाला आदमी। बुखल करने वाला आदमी अल्लाह से दूर है, जन्नत से भी दूर है, जहन्नम के करीब है। हमें अल्लाह की राह में खर्च करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सखावत अल्लाह की अता से है, सखावत किया करो। सखावत को अल्लाह ने पैदा किया तो उसको एक दरख्त की सूरत अता फरमाई। बहुत बेहतरीन हदीस है, तवज्जो से समात फरमाए। फरमाया, सखावत को अल्लाह ने पैदा किया तो उसको एक दरख्त की सूरत अता फरमाई, और उस दरख्त की असल जन्नत के दरख्त तूबा, जन्नती दरख्त तूबा, उसकी जड़ में रखी। उसकी असल को जन्नती दरख्त तूबा की जड़ में रासिक कर दिया। अल्लाह पाक ने उस दरख्त की कुछ शाखों को जमीन की तरफ झुका दिया। जो बंदा सखावत करता है उसकी टहनियों में से, उसकी शाखों में से एक को पकड़ लेता है, अल्लाह पाक फिर उसको जन्नत में दाखिल फरमाता है। फरमाया, सुनो, सखावत करो, सखावत करने वाला जन्नती है। फिर आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने एक और दरख्त जहन्नम में पैदा किया जिसका नाम ज़क्कूम है। कुरान शरीफ में इसका जिक्र आया, इन्ना शजरत ज़क्कूम तुआमुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून। जो ज़क्कूम जहन्नमी दरख्त है, उस दरख्त की शाखों को अल्लाह ने जमीन की तरफ झुका दिया है। जो बंदा बुखल करता है वो उस जहन्नमी दरख्त की एक शाख को पकड़ लेता है, यहां तक कि वो जहन्नम में चला जाता है। फरमाया, सुनो, बुखल करना, अल्लाह की राह में खर्च ना करना, ये नाशुक्री है, और नाशुक्री जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। नाशुक्री जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। इस बात से हमें मालूम हुआ कि सखावत करनी चाहिए, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए।
हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करो कि सदका 70 बलाओं को टालता है। फरमाया, सदका से बंदे के गुनाह ऐसे मिटते हैं जैसे पानी आग को मिटा देता है। फरमाया, सदका 70 बीमारियों को दूर कर देता है और सदके के बेशुमार फैज़ल व बरकत है। फरमाया, सदका मोमिन की उम्र को बढ़ाता है। क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साए तले होगा। सदका जहन्नम की आग से बचाता है और फरमाया, सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। सदका अल्लाह के गजब को बुझाता है। इतनी सारी हदीसें हैं सदके की फजीलत पर। उम्र बढ़ती है, कब्र के अजाब से बंदा बचता है, जहन्नम के अजाब से बचता है, मुसीबतों तकलीफों से बचता है, अल्लाह के गजब से बचता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की बात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी है, अल्लाह पाक ने उनको पूरी दुनिया पर बादशाहत अता की। जिन्नात पर, हवाओं पर, परिंदों पर, जानवरों पर, हर चीज पर आपको अल्लाह पाक ने बादशाहत अता की। उनके जमाने में ऐसा हुआ कि उनका एक शख्स उस जमाने में उसके घर में दरख्त था। दरख्त पर कबूतर ने बच्चे दिए हुए थे। वो शख्स उससे उठाता और परिंदों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस बंदे की शिकायत कर दी कि यह हमारे बच्चे उठाते हैं, हमें तकलीफ देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को बुलाया और अपने दरबार में उसको डांटा, फिर उसको मना किया। उसने तौबा तलाफी की, कहा कि फिर नहीं करूंगी। फिर अगले कुछ महीने के बाद फिर उस परिंदे ने अंडे दिए, बच्चे हुए। फिर उसकी ज़ौजा ने उसको कहा कि ये उठा लो। उसने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझे मना किया है। तो उसकी ज़ौजा ने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह हैं दुनिया भर के, क्या वो तुम्हारे लिए और परिंदे कबूतरी के लिए फारिग बैठे होंगे जो तुम्हारे फैसले करते रहेंगे? छोड़ो। तो वो उस शख्स ने फिर वो अपनी ज़ौजा की बातों में आ गया। अब वो दूसरी बार भी उसने उठा लिया। फिर दूसरी बार वो कबूतरी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत जलाल गुस्सा आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दो बड़े द्यो हैकल जिन्नात को बुलाया, मशरिक और मगरिब से दो जिन्नों को बुलाया और कहा कि फलां दरख्त, फलां जगह पर दरख्त है, वहां उसके जाके करीब खड़े हो जाओ और फलां बंदा अगर उस दरख्त पर चले तो उसकी टांग से पकड़ के उसको मशरिक और मगरिब की तरफ फेंक देना। वो शख्स फिर ऐसा हुआ, कई टाइम के बाद फिर वो दरख्त पर चढ़ा। अभी जा रहा था तो बैर दरवाजे पर किसी ने सदा लगाई के खाने के लिए कुछ दे दो। उसने अपनी ज़ौजा से कहा घर में कुछ खाने को है तो दे दो। फिर वो खुद दरख्त से नीचे उतर आया, घर में रोटी का एक टुकड़ा रखा हुआ था, वो उसने उस मांगने वाले को दे दिया, सदका कर दिया। अब ये शख्स गया दरख्त से वो उठा के लाया। कबूतरी तीसरी बार गई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को बुलाया, भाई मैंने तुम्हें काम दिया था, तुमने किया नहीं। जिन्नात ने कहा कि हम वहां उस दरख्त के पास पहुंच गए थे, वहीं पे ही थे। ऐसा हुआ कि वो बंदा जब दरख्त पर चढ़ा, हम उसको पकड़ने वाले थे। हमें जैसे आपने कहा था कि इसका एक पांव पकड़ के मशरिक की तरफ खींचना और एक मगरिब की तरफ, हम ऐसे ही करने वाले थे। लेकिन आसमान से अल्लाह ने दो फरिश्तों को भेजा जिन्होंने हमें पकड़ के फेंक दिया। फरिश्तों ने जिन्नात को पकड़ के दूर फेंक दिया, वरना आज तो हम इसकी टांगे तोड़ देते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को बुलाया, उससे पूछा आज तुमने कोई बड़ी नेकी की है? कहा नहीं, मुझे तो कोई मालूम नहीं है कौन सी नेकी की है। हाँ, अलबत्ता यह है कि वो मैंने आज थोड़ी रोटी सदका की थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज जिन्नात मैंने भेजा था, आज तुम्हारी खैर नहीं थी, तुमने ये नेकी की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें उस सदके की बरकत से तुझे बचा लिया है। देखो कितनी बड़ी मुसीबत बंदे से आके टल गई। ये मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में बंदे को सदका देना चाहिए, इससे बंदे की मुसीबतें दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं और बंदा इन ऐसे मामलात से, मसैब व अलाम से बचा रहता है, हिफाजत रहती है, खुद की भी, घर वालों की भी, बच्चों की, सबकी हिफाजत रहती है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें भी अपनी राह में इखलास के साथ खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।